A very good morning in Jai Hind class 12th. Dear students, in part A, we are done with chapter number 1, 2, 3, 4 and 5th, that is organizing. Today we are going to start chapter number 6, that is staffing. Before that, I would like to recall that these all are the functions of management. We should not forget this, that these all are the function of management. What is management? An art of getting things done through others. Okay, so management has few functions. A process is there, that is planning, organizing, directing, after organizing comes staffing, then comes directing, and then controlling. These are the 5 functions of management. Planning we are done with, organizing we are done with, right? Today we are going to start the another function of management, that is staffing. As the example I had given in the very first lecture about your mother, that your mother is a homemaker, she needs to plan each and everything for the day. Then second step your mother supposed to take is to organize the things for what she has planned. जो उन्होंने प्लानिंग किया है उसके लिए चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना. ऑर्गेनाइज कैसे किया? लाइक आई नीड 4 maids. ठीक है, आई नीड 4 maids फॉर 4 डिफरेंट वर्क, लाइक फॉर कुकिंग, दो जनरली ऐसा होता नहीं है, बट इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल. फॉर कुकिंग, फॉर washing clothes, for cleaning dishes, right, and for dusting, let's suppose. That's an easy house example. Okay, so here in the step of staffing, what your mother needs to do, she needs to recruit 4 maids. यहाँ पर वो 4 maids को अपॉइंट करेंगी, रिक्रूट करेंगी. Like if we are talking about this in the organization में they are very much aware that this is the assembly chain. जहाँ पर फ्रिज बनता है उसको हमने डिवाइड किया हुआ है into 4 parts. फ्रिज का फ्रंट कवर, फ्रिज के स्विचेस, वायरिंग एंड पैकिंग. ठीक है, काइंड ऑफ ऐसे लगता है उसमें. तो फॉर दिस पर्पस वी नीड 2 people. For this we need 4 people. For wiring we need 2 people. Packing के लिए we need 8 people. So here the manager needs to appoint these people, hire these people, and that is staffing. You organized each and everything that we need to process with the assembly chain. Accordingly we need 2 people for putting the front cover. We need 4 people for switches. We need 2 people for putting the wiring and 8 for packaging. Now we need to arrange these people, and that is staffing. Okay, see, this is your chapter number 6, staffing. Staffing is concerned with filling various position or job in the organization with the suitable personnel. What does it mean? It means I need 2 people who are specialized in putting the front cover, of the fridge, right? I need 4 specialized people who are specialized in putting the switches. ठीक है, I need 2 people जो वायरिंग करने में परफेक्ट हो, स्पेशलाइज्ड हो. And that is what staffing is. It is concerned with filling various positions or jobs in the organization, किसी कंपनी में, with the suitable personnel means people. जो उस काम में माहिर हो उसे अपॉइंट करना.
it is a distinct element of human resource management which is concerned for each manager at each level of the organization. It is an element of human resource management means if this is being looking after by the production manager इसकी देख रेख करते हैं, तो it is the responsibility of the production manager to hire these people, to recruit these people so that he can get the work done, वो काम करा सके. अगर हम सेल्स में बात करते हैं तो the one who is the sales manager, what is the responsibility of the sales manager? It's just वो he needs to recruit two sales executive because वो कंपनी का काम देखेगा और ये लोग बाहर का काम देख सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेल्स मैनेजर टू रिक्रूट टू सेल्स एग्जीक्यूटिव. ओके, दो एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फॉर द रिक्रूटमेंट. दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर. If right type of person are not available, the organization would not be able to accomplish its objectives. बेटा अगर वायरिंग के प्लेस पर मैं ऐसे किसी लेबर को अपॉइंट करती हूँ जो शायद पैकेजिंग में स्पेशलाइज्ड है, तो मेरा काम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता. सो आई नीड टू प्लेस राइट टाइप ऑफ पर्सन एट राइट प्लेस, राइट. इट इज़ एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ जॉब ऑफ एवरी मैनेजर टू प्रोक्योर, डेवलप एंड मोटिवेट पर्सनल हु कैन वर्क efficiently for the goals of the organization. So what we read these three terms, that is procure, develop and motivate. It is the responsibility of any of the manager to actually procure, develop and motivate the humans who can work efficiently for the goals, toward the goal of the organization. If let's suppose हम बात करते हैं इस प्रोडक्शन चेन में, इस असेंबली चेन में, अगर हमारे स्विचेस के ये 4 बंदों में से 2 बंदों ने 2 people have left the job, ठीक है, only 2 are here now, right? सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्शन मैनेजर और द HR मैनेजर, जो HR का अपना डिपार्टमेंट होता है, सिर्फ इसीलिए होता है, वो अब इस चैप्टर में आप पढ़ोगे. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्शन मैनेजर टू गेट द HR अवेयर दैट आई हैव वैकेंसी ऑफ 2 people. इन लोगों को, प्रोडक्शन मैनेजर को ऑलरेडी प्रोक्योर करके रखने होते हैं 2 या 3 people, 2 or 3 people, so that in case of emergency, if anybody quit from the job, so they can hire those particular people, so that the working of the organization, the working of the product, right, would not suffer. Let's suppose ये 2 लोगों के घर में शादी है, इन लोगों ने जॉब छोड़ दिया है, तो ऑलरेडी हमारे पास इतने प्रोक्योर करके रखना चाहिए, हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए लेबर. ऑल ऑफ अ सडन हम उनके प्लेस पर उनको बुला सकें ताकि हमारा एक दिन का भी प्रोडक्शन सफ़र ना करे. Right, so it is the responsibility of the manager to procure the jobs, develop those people who are working under you. It is the responsibility of the manager to develop their training skills, to develop their skills, उन्हें और अच्छे से, so that they can work efficiently. The manager needs to develop their skill more, develop as well as to motivate, so that they work efficiently towards the goal of the organization. Procure, अगर कहीं पर हायरिंग होती है, कोई जॉब छोड़कर क्विट करके चला गया है, इन प्लेस ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन द मैनेजर मस्ट हैव सम पीपल, राइट, जिन्हें वो तुरंत अपॉइंट कर सकें ताकि प्रोडक्शन सफ़र नहीं करे. ऑल राइट, दैट इज़ प्रोक्योरमेंट ऑफ पर्सनल. The people who are working under them, it is the responsibility of the manager to develop their skills and to motivate them so that they efficiently work toward the achievement of the organization's objective. Right? Let's discuss the concept and importance of staffing today. Meaning of staffing. The term staffing may be defined as the process of procurement. बेटा इस वर्ड को समझो. अगर कोई प्रोडक्शन लाइन है, असेंबली चेन है, जहाँ पर काम चलता है, लाइक रुकता नहीं है काम. Some people are fixing the front cover, some people are fixing the switches, some are fixing the wiring, some are doing the packaging. ये काम चलता रहता है. एक फ्रिज आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा फ्रिज आया. इफ़ बिकॉज ऑफ पीपल अगर काम हमारा सफ़र करेगा, हमारी प्रोडक्शन सफ़र करेगी, अल्टीमेटली हमारा प्रॉफिट सफ़र करेगा. वी नीड टू
डू दी प्रोक्योरमेंट मीन्स हमें इतने एम्प्लॉयज़ अब हमारे पास स्पेयर में होने चाहिए कि अगर कोई छोड़ दे तो हमारा काम सफ़र नहीं करे, उसके प्लेस पर हम तुरंत किसी को अपॉइंट कर सकें. दैट इज़ व्हाट स्टाफिंग इज़. It is a process of procurement and development of required number of persons to fill various positions or jobs in the organization. It is the duty of every manager to perform this function. Production सफ़र नहीं करना चाहिए, काम सफ़र नहीं करना चाहिए because of the personal means people, right? So it is the responsibility of the manager to fill various position or job in the organization. Staffing is managerial function, management का function है. I've just told you that staffing is the function of management, right? Function of filling and keeping filled the position in the organization structure. Fill करना, that we need 2 people here, we need 4 people here, we need 2 people here for wiring, we need 8 people for packaging, as well as keeping them filled. If anybody is going out from the organization, is quitting the job, the manager must be capable to keep filled the position. Because अगर वो position filled नहीं करते हैं, if 6 people are left in packaging, so इतना सारा आगे से काम आएगा, कितने सारे फ्रिज आएंगे, उनकी पैकेजिंग के लिए 6 लोग रह गए, वो इतनी एफिशिएंटली काम नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पर 8 लोगों की ज़रूरत पड़ती है, जो वी हैव ऑलरेडी फिक्स दिस ड्यूरिंग ऑर्गेनाइजिंग कि 8 लोगों की ज़रूरत इस काम पर पड़ेगी. अगर 6 रह गए तो ओवरबर्डन होंगे, एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएंगे, राइट. सो द पीपल अपॉइंटेड आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ परमानेंट एम्प्लॉयज़. जो आप रख रहे हो वो परमानेंट एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, डेली वर्कर्स हो सकते हैं, कंसल्टेंट हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, राइट. परमानेंट एम्प्लॉयज़ हो गए आपके, प्रोडक्शन मैनेजर इज़ योर परमानेंट एम्प्लॉय. डेली वर्कर्स आपके ये हो गए, हु इज़ फिक्सिंग द फ्रंट कवर, हु इज़ फिक्सिंग द स्विच, हु फिक्स द वायरिंग, पैकेजिंग जो कर रहे हैं, ये आपके डेली वर्कर्स हो गए, ठीक है. कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़, आपकी लेबर बिल्कुल आपको परेशान कर रही है, वो सब लोग छोड़ के चले जाते हैं, आपका काम सफ़र करता है. आपने कॉन्ट्रैक्ट पर किसी को कहा, द कॉन्ट्रैक्टर इज़ अ पर्सन जिससे आप कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हो और उसके साथ 10 लोग काम करते हैं, तो ये 10 के 10 उसके लोग हमारे साथ काम करेंगे. अब ये कॉन्ट्रैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, हमें डेली के 10 लोग चाहिए, वो ये अवेलेबल करा कर देगा. सब काम क्यों हो रहा है? सो दैट प्रोडक्शन विल नॉट सफ़र. प्रोडक्शन नहीं रुकनी चाहिए. सो स्टाफिंग इंक्लूड फ्यू पॉइंट्स. आइडेंटिफाई द रिक्रूटमेंट ऑफ वर्कफोर्स एंड इट्स प्लानिंग. हमें कितने लोगों की ज़रूरत है, आइडेंटिफाई करना. वर्कफोर्स मतलब कितने लेबर की ज़रूरत है, कितने काम करने वालों लोगों की ज़रूरत है, और उसकी प्लानिंग करना. हमें 2 लोगों की ज़रूरत इसके लिए है, 4 लोगों की ज़रूरत स्विचेस के लिए है, 2 लोगों की वायरिंग के लिए है, 8 फॉर पैकेजिंग. एंड देन needs to plan that how the people will be recruit, through which medium the people will be recruit. Recruitment and selection of appropriate personnel for new jobs for positions which may arise a result of existing employee leaving the organization. अगर कोई एम्प्लॉय एग्जिस्ट करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, फॉर एनी ऑफ द रीज़न ही लीव द ऑर्गेनाइजेशन, तो रिक्रूट करना, अपॉइंट करना और सेलेक्ट करना appropriate पर्सनल को, परफेक्ट ह्यूमन को फॉर द न्यू जॉब और फॉर द पोजीशन. ये तो ठीक है, डेली लेबर्स हो गए. बट अगर प्रोडक्शन मैनेजर के यहाँ कोई प्रॉब्लम हो गई और प्रोडक्शन मैनेजर हैज़ टू क्विट द जॉब, देन उसके लिए जो बॉस होंगे वो प्रॉपर रिक्रूटमेंट करेंगे. रिक्रूटमेंट मतलब हायर करेंगे लोगों को. अब जब लोगों को हायर करेंगे तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने MBA किया है, वो सभी अपनी एप्लीकेशंस लगाएंगे. लाइक 10 एप्लीकेशंस हैव बीन रिसीव्ड बाय द बॉस. उन 10 में से सिलेक्शन करना ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट who has the experience, who has the skills, who has the capability to handle the production team, right? This is what recruitment and selection of appropriate human being for the position. Then comes, आपने रिक्रूटमेंट कर लिया है, आपने पहले देखा आपको कितने लोगों की ज़रूरत है, आप उसके लिए प्लान करोगे. आपने रिक्रूटमेंट के लिए और सिलेक्शन के लिए क्राइटेरिया बना लिया है, आपने जिसने छोड़ा है उसके प्लेस पर अपॉइंट कर लिया है सेलेक्ट करके आउट ऑफ मैनी ऑल्टरनेटिव्स. अब योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू ट्रेन फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ वर्कफोर्स. जहाँ उसे काम करना है आप उसे ट्रेन करेंगे, डेवलप करेंगे, सो दैट आपके काम में ग्रोथ हो सके. ज़रूरी नहीं है वो मैनेजर है, बट
आपके काम की परफेक्ट नॉलेज उसको हो, आप पूरा काम उस पर नहीं छोड़ सकते हो, नीड टू ट्रेन दैट पर्टिकुलर पर्सन, राइट. डिसाइडिंग ऑन कॉम्पनसेशन, प्रमोशन एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल. अब इफ समबडी is working with you, it is your responsibility to compensate. कहते हैं ना सैलरी में कॉम्पनसेट कर लेते हैं. हो सकता है कोई बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन मैनेजर आपको मिल जाए, बट वो आपसे पैसों की ज़्यादा, सैलरी ज़्यादा डिमांड कर रहा है. हो सकता है आपको कम पैसों में मिल रहा है, बट लेकिन उसके पास वो स्किल्स नहीं है. सो डिसाइडिंग ऑन द कॉम्पनसेशन इज़ द फर्स्ट थिंग. देन इफ़ द particular individual is working very good, so it is the responsibility of the boss to promote the particular individual. Check the performance appraisal, उसे appraise करना for the particular work he is doing for your company, for your organization. ऐसे थोड़ा ना अपॉइंट करके रख लिया. अगर वो कुछ काम कर रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा, आपके टारगेट्स टाइम पर कंप्लीट कर रहा है, it is the responsibility of the boss to appraise for the work for to that particular employee, right? Let's read the features of staffing function. Staffing is a function of management. What are its feature? It is an important function of management. अगर लोग नहीं होंगे तो काम नहीं होगा. Basic concern of staffing is management of manpower or human resource. Basic जो इसका एजेंडा होता है वो होता है to recruit, to appoint people at the workforce. जहाँ पर काम हो रहा है वहाँ के लिए लोगों को रिक्रूट करना. स्टाफिंग हेल्प करता है गेटिंग राइट टाइप ऑफ पर्सन ऑन राइट जॉब. स्टाफिंग में एक प्रोसेस होता है, क्राइटेरिया होता है. अगर आप उसे फॉलो अप करके चलते हो तो आप यू कैन अपॉइंट राइट टाइप ऑफ पर्सन ऑन राइट जॉब. ठीक है, आपने एप्लीकेशंस निकाले, एप्लीकेशंस आ गए 10 नहीं 20 एप्लीकेशंस यू गॉट इट. क्योंकि कितने लोग होते हैं जो जॉब हु आर लुकिंग फॉर द जॉब्स. आउट ऑफ दोज 20 आपने क्राइटेरिया रखा, आपको सिलेक्शन करना है क्वेश्चन आंसर राउंड बेसिस पर, इंटरव्यू बेसिस पर. ठीक है, तो ये दिस क्राइटेरिया इज मस्ट एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्टाफिंग. Staffing is a pervasive function. It is performed by manager at all level of management. Staffing is needed in everywhere. Either प्रोडक्शन में लोगों की ज़रूरत होती है, सेल्स में लोगों की ज़रूरत होती है, फिनेंस डिपार्टमेंट में पीपल की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ तक कि एचआर जो ये स्टाफिंग का प्रोसेस देखते हैं वहाँ पर भी एचआर एग्जीक्यूटिव और द नंबर ऑफ पीपल हु आर वर्किंग अंडर एचआर. ठीक है, सो दैट इज़ वाई इट इज़ अ परवेसिव फंक्शन रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट. इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस. लोग आते हैं, लोग जाते हैं. एज एक्विजिशन एंड ट्रेनिंग ऑफ पीपल आर रिक्वायर्ड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ बिजनेस. यहाँ पर 2 people आर हियर फॉर फिक्सिंग द फ्रंट ऑफ द फ्रिज. अगर किसी एक को प्रॉब्लम होती है वो जाएगा. इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस. हम फिर से हायरिंग करेंगे किसी एक की, फिर उसको ट्रेंड करेंगे, फिर उसको काम सिखाएंगे. अगर वो फिर चला गया फिर से उसको किसी और पर्सन को हायर करेंगे, फिर उसको ट्रेंड करेंगे, उसको काम सिखाएंगे. Right? So it is a continuous process, we can say that. Staffing has human orientation. It tries to develop people to achieve their full orientation. Staffing में concentration किया जाता है on the people who are working with you, so that उनका पूरा potential लिया जाए. Why? Because the objective of the organization get fulfilled. Organization का objective पूरा हो, उसके लिए जो करना पड़ेगा बॉस को वो करेंगे. राइट. सो इस पर इन स्टाफिंग वी ओनली फोकस ऑन पर्सनल पीपल हु आर द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन. राइट. ओके, नाउ कम्स द नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग. व्हाई वी नीड स्टाफिंग? इट इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. जस्ट आई हैव टोल्ड यू कि राइट काइंड ऑफ पीपल अपॉइंट किया जाना चाहिए. अपॉइंट करने के बाद भी एडिक्वेट ट्रेनिंग दी जाए उसको, सो दैट दे कैन लर्न द न्यू जॉब स्किल्स. हायर प्रोडक्टिविटी अगर हमें चाहिए एंड क्वालिटी बाय ऑफरिंग देम इंसेंटिव्स. मीन्स इफ़ दे आर वर्किंग वेरी नाइसली, इफ़ दे आर फुलफिलिंग योर टारगेट, तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बॉस टू गिव देम द इंसेंटिव. आपका टारगेट है कि आपको 100 फ्रिज एक दिन में बनाने हैं, 100 फ्रिज आपको एक दिन में मैन्युफैक्चर करने हैं, बट आपकी पीपल इतने स्किल्ड हैं वो 120 फ्रिज एक दिन में मैन्युफैक्चर करते हैं. सो यहाँ पर आप क्या करोगे उसकी जगह? यू विल गिव देम सम इंसेंटिव आउट ऑफ प्रॉफिट. आपको जो प्रॉफिट हो रहा है ये 20 एक्स्ट्रा टीवी का, उसका कुछ पार्ट आप इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, सो दैट दे कुड बी मोटिवेटेड. राइट. सो इफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ द स्टाफिंग फंक्शन इज नेसेसरी टू अचीव व्हाट? डिस्कवरी ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सनल और स्टाफ. आप अच्छी स्टाफिंग करते हो, आपको लायक, केपेबल, स्किल्ड
स्टाफ मिलता है थ्रू स्टाफिंग ओनली। एफिशिएंट परफॉर्मेंस, अगर आप उनको ट्रेंड करोगे, इफ़ यू नो हाउ टू प्लेस राइट पर्सन ऑन राइट जॉब, आप उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दोगे, सो दिस इज़ द इंस्ट्रूमेंटल इन द एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, कैपिटल एंड मटीरियल्स। द पीपल हु बिलोंग्स टू यू, हु आर वर्किंग विद यू, दे वुड गेट अपडेटेड ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बिकॉज आप ट्रेंड कर रहे हो उनको about the capital, where the capital is arranging for the organization, where the material is coming from and how much material we supposed to use. Efficient performance होगी just because of staffing में trained किया जाता है लोगों को, those people who are working with you. Optimum utilization of human resource. See, बड़े बड़े business concerns होते हैं, उनका अलग एजेंडा होता है, राइट वो मनी स्पेंड करते हैं रिक्रूटमेंट पे, क्योंकि उन्हें अच्छे लोगों की ज़रूरत होती है, हु हैव स्किल्स, हु आर केपेबल, राइट। तो उसके लिए वो रिक्रूटमेंट करते हैं। रिक्रूटमेंट का एक प्रोसेस होता है जो आप इसमें आगे पढ़ोगे। एप्लीकेशंस हम मंगाते हैं लोग पीपल से, फिर उसके बाद उनमें से सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन के बाद हम ट्रेन करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो आ गए तो वो एक्सपीरियंस्ड हैं, बट वो आपके काम की नॉलेज तो उनको पहली बार हो रही है, वो आपके साथ काम पहली बार कर रहे हैं, दो वही काम वो पहले किसी ऑर्गेनाइजेशन में कर चुके हैं, बट फिर भी इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ट्रेन देम, ताकि आगे कोई प्रॉब्लम हो तो वो ये ना कह सकें कि दिस वर्क इज़ न्यू फॉर अस। एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके बारे में सोचना। तो इससे ह्यूमन रिसोर्स मतलब ह्यूमन रिसोर्स मतलब पीपल का एफिशिएंटली यूज़ होता है, क्योंकि हम अच्छा रिक्रूट कर रहे हैं, अपॉइंट करके, सिलेक्शन करके, फिर जिसे रिक्रूट किया है उसको ट्रेन कर रहे हैं, उसके डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं, तो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होता है ह्यूमंस का, रिसोर्स का। अनदर पॉइंट इज इंश्योर सर्वाइवल एंड ग्रोथ, प्लानिंग फॉर मैनेजरल पोजिशन likely to fall vacant in future. See, let's suppose प्रोडक्शन मैनेजर ने जॉब क्विट कर दिया। अब इस पूरे एम्प्लॉयज़ इन वर्कर्स के ऊपर एक सुपरवाइज़र भी है जो कि प्रोडक्शन मैनेजर को रिपोर्ट करता है, सुपरवाइज़र। अब ये सुपरवाइज़र के लिए चांस हो गया, अगर कभी प्रोडक्शन मैनेजर ने क्विट कर दिया जॉब, इसको ट्रेंड किया जा रहा है, ये इन लोगों को लुक आफ्टर करता है इन दी एब्सेंस ऑफ प्रोडक्शन मैनेजर ऑल्सो। इसके लिए अपॉर्चुनिटी हो जाती है क्योंकि इसको भी ट्रेनिंग दी जा रही है, सो दैट अगर कोई मैनेजरल पोजीशन वैकेंट होती है तो द सुपरवाइज़र कैन बिकम द पार्ट ऑफ दिस पोजीशन, राइट, फॉर द कॉन्टीन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज। अगर वो बाहर से किसी को नहीं अपॉइंट कर पाए हैं, फॉर द कॉन्टीन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ दे विल गिव द चांस टू दैट पर्टिकुलर पर्सन। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल, द मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द मैन पावर रिक्वायरमेंट। स्टाफिंग से हमें पता चलता है कितने लोगों की हमें ज़रूरत है, एडवांस में पता लग जाता है। देखो, टू पीपल वी नीड टू फिक्स द फ्रंट, टू पीपल वी नीड टू फिक्स द स्विचेस, राइट। So it has also to train and develop the existing person for career advancement. जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो नए आए हैं, उन्हें ट्रेन करने के साथ साथ हमें एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को भी ट्रेन करना चाहिए, एंड दिस विल मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी इन फ्यूचर। ओके, इम्प्रूवमेंट ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ एंड मॉरल। द पीपल, अगर हम वी आर पुटिंग राइट पर्सन एट राइट प्लेस, सो मैनेजमेंट कैन शो द इम्पॉर्टेंस इट अटैचेस टू द पर्सनल वर्किंग इन द एंटरप्राइज। इससे दोज पीपल हु आर वर्किंग, वो केपेबल हैं, उनके पास स्किल्स है, उन्हें जॉब सेटिस्फेक्शन होगा दैट वी आर वर्किंग वेरी नाइसली बिकॉज वी आर ट्रेंड, इससे उनका मॉरल हाई होगा। सो बेटा, इन सब चीज़ों से हमने ये समझा कि दोज पीपल हु आर वर्किंग विद अस, इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ट्रेन देम, चाहे वो एक्सपीरियंस्ड हैं, उन्हें अपना काम समझाना। इफ़ दे आर डूइंग गुड वर्क तो उन्हें मोटिवेट करना, एंड इफ़ दे आर डूइंग गुड वर्क तो उन्हें इंसेंटिव्स देना, उनको अप्रेज करना फॉर देयर गुड वर्क, because we should not forget that they are working toward the achievement of the organizational objective. So I'm going to finish up to here only. Revise the chapter. Have a good learning. Thank you.